Hello everyone. Let's begin with the most important section, that is digestive system. It holds the most number of questions. So coming to the digestive system, let's begin with the liver. In the liver, we will go for LFT, liver function test. LFT में फर्स्ट इज एक्टेरिक इंडेक्स. एक्टेरिक इंडेक्स क्या है कि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन और ये डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन की बात करें तो प्री हिपैटिक, जॉन्डिस में इट इज़ लो, हिपैटिक जॉन्डिस में इट इज़ मीडियम एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस एक्टेरिक इंडेक्स इज हाई. दूसरा है वांडनबर्ग टेस्ट. So what is Vandenberg test? It gives idea about concentration of direct bilirubin या direct reacting and indirect reacting bilirubin in the serum. बात करते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब बढ़ा है. सो इन द प्री हिपैटिक, ऑल्सो कॉल्ड एज हिमोलिटिक या ओवर प्रोडक्शन जॉन्डिस. इन दिस there will be increase in indirect, so the indirect is present here in hepatic, also called as hepatocellular या intrahepatic. इसमें biphasic is there. Coming to the post hepatic, is also called as extrahepatic or obstructive jaundice. In this case, there will be increased direct bilirubin. So biphasic means both indirect and direct reacting bilirubin are present. The post-hepatic or the obstructive, the name itself suggests that it is due to the obstruction of bile duct. Now coming to the RBC. The RBC, when the lifespan of RBC is over, then this RBC is break down into the heme plus globin. This heme is further break down into iron plus bilirubin. Then the bilirubin undergoes conjugation that occurs in liver. So after conjugation, it is converted into bilirubin
glycerinide. Don't go for the spelling. These then converted into mesobilirubin plus stercobilinogen. This stercobilinogen, after oxidation, is converted into stercobilin and it is passed on through the feces. Coming to the mesobilirubin, this undergoes oxidation and becomes urobilin and it comes out through urine. So this is the normal physiology of the RBC, how it breakdowns. Now coming to the hemolytic jaundice. In hemolytic jaundice, there is excess of RBC destruction, so there will be excess of heme as well as the globin formation, leading to the more and more bilirubin formation. अब इस केस में क्या होगा, चूँकि यहाँ पे बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसे केस में देयर विल बी, है ना, जो लीवर होगा ये सारे के सारे को कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा. सो द लीवर कुड नॉट conjugate all the bilirubin, जिसके कारण से यहाँ पे अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, है ना. और यही क्वेश्चन आता है कि हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक, है ना, में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, तो अनकॉन्जुगेट है. उसका रीज़न समझ में आ गया होगा ऑलरेडी. हिपैटिक जॉन्डिस की बात कर रहे हैं. हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होगा यहाँ पे कि कॉन्जुगेटेड एज वेल एज अनकॉन्जुगेटेड दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में रहेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं बाईफेजिक, है ना. कमिंग टू द पोस्ट हिपैटिक. पोस्ट हिपैटिक की बात करें तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि लीवर में कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं है हीम का या ग्लोबिन का, और कॉन्जुगेशन हो चुका है लीवर में. प्रॉब्लम उसके बाद आई है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट. अब ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज मिलेगा. अब यहाँ पे जो डायरेक्ट है ना, वांडरबर्ग का मतलब क्या है. एक रिएजेंट होता है वांडरबर्ग रिएजेंट. ये रिएजेंट क्या करता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अगर इस when we mix the Vanderburg reagent to the conjugated bilirubin, the color changes to purple in 30 seconds. So अगर conjugated bilirubin है और ये कलर चेंज हो जा रहा है,
So this is a case of obstructive jaundice. Now the indirect, when it is indirect positive, it means more unconjugated bilirubin, मतलब it is a case of hemolytic jaundice. तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने वहाँ बात किया कि जो वांडरबर्ग रिएजेंट है कॉन्जुगेटेड से डायरेक्ट रिएक्ट करता है और कलर चेंज हो जाता है, बट अनकॉन्जुगेटेड से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। मतलब जो वांडरबर्ग रिएजेंट है ये अनकॉन्जुगेटेड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी ऐड सम मिथेनॉल, मतलब अल्कोहल ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और अब जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, देन दिस वांडरबर्ग reagent is now reacts with the dissolved unconjugated bilirubin। मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव हुआ तो सही है, बट ये इनडायरेक्ट पॉजिटिव है। डायरेक्ट पॉजिटिव तो यहाँ था जब डायरेक्ट कलर चेंज हो गया था, बट यहाँ पे डायरेक्ट कलर नहीं चेंज हुआ, तो हमने मिथेनॉल या अल्कोहल मिलाया जिसके कारण पॉजिटिव आया है, तो इनडायरेक्ट है। तो इसका यही मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब। कमिंग टू द दोनों कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड, अगर ये दोनों जो बाईफेजिक में है, हिपैटिक वाले जॉन्डिस में है, दोनों बढ़ा हुआ है, अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे ही मिलाएंगे तो 30 सेकेंड में ये पर्पल हो जाएगा कॉन्जुगेटेड वाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे अल्कोहल, और अगर ये फर्दर कलर इंटेंसिफाई हो जाता है, इसका साफ मतलब है कि देयर वाज प्रेजेंस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आल्सो, सो इट इज़ अ केस ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस। तो अगर फर्दर कलर इंटेंसिफाई होता है, देन इट इज़ अ बाईफेजिक वांडरबर्ग रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड इज डाई एक्सक्रीशन टेस्ट। व्हाट इज डाई एक्सक्रीशन टेस्ट? इट यूजेस BSP डाई रोज बंगाल या इंडोसाइनिन क्रीम। The next is Harrison spot test। बस इन सब के नाम इम्पोर्टेंट है, इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड टॉलरेंस टेस्ट। So amino acid tolerance test, it is used to detect tyrosine, arginine and hippuric acid। So in case of liver disorder, there is decrease in albumin, there is decrease in globulin। अब लिवर डिसऑर्डर में क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड टू एलेंटोइस ये डिक्रीज हो जाता है।
है ना। अब इसके कारण यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी बढ़ने लगता है। सो द इन केस ऑफ या इन लिवर डिसऑर्डर, conversion of uric acid to allantois is decreased, there is accumulation of, और वो भी accumulation करीब करीब 10 times बढ़ जाता है। बाकी बाइल पिगमेंट के टेस्ट भी करा सकते हैं, वो तो समझ में आ ही रहा है कि स्टर्कोबिलिन फीसेस से जाएगा, तो और जो यूरोबिलिनोजन है वो यूरिन से जाएगा, तो यूरिन और फीसेस दोनों में ही यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन ज़्यादा होंगे। कमिंग टू द लीवर स्पेसिफिक एंजाइम, द लीवर स्पेसिफिक एंजाइम फर्स्ट इज ALT या इसी को बोलते हैं SGPT, ये डॉग्स में है, और GGT है ना, जो GGT है इट इज़ फॉर द बोवाइंस। याद रखना है कि बोवाइंस के लिए ओनली लीवर स्पेसिफिक नहीं है, ये हमने पहले के लेक्चर्स में बात की थी। तो ये फिर से बात एक बार कर लेते हैं कि फॉर या इन बोवाइंस ALT या SGPT इट इज़ ऑल्सो, है ना, secreted by या present in intestine, मसल और पेनक्रियाज, इन सब से ये एंजाइम आता है। तो लीवर स्पेसिफिक बोवाइंस में ये नहीं हो रह पाता है ना। थर्ड इज एक तो इसकी सेकेंड, थर्ड सीरम आर्जिनेज। सीरम आर्जिनेज की बात करते हैं कि सीरम आर्जिनेज अक्यूट हिपैटिक डैमेज में हम पता कर सकते हैं, ये एलिवेटेड होगा। मतलब इंडिकेशन है ये। नेक्स्ट मिसलेनियस टेस्ट में बस नाम याद कर लो आप, है ना, उतना डिटेल में मिसलेनियस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मिसलेनियस टेस्ट में फर्स्ट इज लिगैंडिन मेजरमेंट, अगर नेक्रोसिस ज़्यादा होगा देन लिगैंडिन विल इंक्रीज। दूसरी बात करें प्रोपियोनेट लोडिंग टेस्ट, है ना, तो करता क्या है कि इट चेक या इट मेजर्स द कन्वर्जन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट टू ग्लूकोज, है ना। तो ये जो चीज़ होता है ये मेनली होता ही है लीवर में, तो उससे हम IV दे देते हैं, तो चीज़ हम पता कर सकते हैं। ये मिसलेनियस टेस्ट है। बस मिसलेनियस में प्रोपियोनेट लोडिंग टेस्ट और लिगैंडिन दो याद रख लेना, बस नाम। कमिंग टू द जॉन्डिस, ऑल्सो कॉल्ड एज इक्टेरस, प्रीहिपैटिक जिसको अपन हीमोलाइटिक बोलते हैं। सो इट मे बी ड्यू टू द बबेसिया, एनाप्लाज्मा, लेप्टोस्पाइरा, टॉक्सिसिटी, सम टॉक्सिसिटी लाइक सेलेनियम, कॉपर, है ना, इन्फेक्शियस अनीमिया, इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया EIA, और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, इस टाइप के डिजीज़ में ही देखा जाता है। देयर विल बी डार्क colored feces. Coming to the hepatic, in hepatic there will be normal feces,
It is due to the deficiency of vitamin E and selenium, CCl4 toxicity. Post-hepatic. Post-hepatic, there is obstruction in the bile duct, और ये obstruction may be due to the calculi or may be due to the nematodes. Clinical sign are clay and putty colored feces. ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये क्लिनिकल साइन. हेपेटाइटिस. So what is hepatitis? It is degeneration and inflammation of liver. The main symptom, it is steatoria. It means fat in the feces, light colored feces. Also called as dummy syndrome. Okay, now the type of hepatitis. The first is infectious hepatitis, generally due to the Clostridium novii. Type B. It causes necrotic hepatitis. It may be due to the bacillary hemoglobinuria. The second one is nutritional one. So the nutritional hepatitis, deficiency of methionine, cysteine, cobalt. Due to the cobalt, it is white liver disease. It may be parasitic due to the fasciola, toxocara, echinococcus. It may be the toxic one, maybe due to the copper, arsenic, phosphorus, selenium, CCl4, CHCl3, lantana camera toxicity. ये सब toxicity है. Coming to the congestive hepatitis is due to the accumulation of the blood. और ये blood accumulate क्यों हो जाएगा? Due to the CHF, congestive heart failure. इसके कारण से ये भी देखने को मिल सकता है. The next is cirrhosis और liver cirrhosis. In liver cirrhosis, for the treatment we use anti-fibrotic drugs. Liver cirrhosis की बात कर रहे हैं. It is fibrosis of liver and it is a chronic hepatitis. Common cause in the animal is mostly the chronic fasciolosis. क्रोनिक फेसियोला के कारण ये हो जाता है. जो क्लिनिकल साइन है या मॉर्बिड साइन, पोस्टमार्टम लीजन ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द ब्रॉन्ज कलर्ड liver. Bronze color liver is seen in the liver cirrhosis. The next is lupinosis.
it is yellow atrophy of the liver. There will be stiff gait या staggering gait, and in the lupinosis also there is bleeding from the natural orifices. Common cause is mycotoxins, that is फॉर्मसिन. ये आपको याद रखना है लुपिनोसिस. सारे के सारे ऑल लिवर डिसऑर्डर्स जितने भी अपन बात कर रहे हैं, सब में सबके डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे अपन कि व्हेन वी विल गो फॉर द डायग्नोसिस, तो अपन फिकल देख लेंगे ना कि फिकल के साइंस क्या हैं, कलर क्या है. फिर हमने बात किया कि पोस्टमार्टम लीजन से ब्रॉन्ज कलर. लेकिन जब अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो सब में जो कॉमन ट्रीटमेंट विल बी द फैट फ्री डाइट. ऐसा डाइट देंगे, द डाइट शुड बी रिच इन कार्ब्स, है ना, और लिटिल प्रोटीन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, फैट होना ही नहीं चाहिए और प्रोटीन थोड़ा होना चाहिए. ऐसा अपन डाइट पे रखेंगे जब भी अपन को क्रोनिक या एक्यूट हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, है ना, आ जाए. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इज एसाइटिस. इट इज accumulation of non-inflammatory fluid in the peritoneal cavity. यहाँ पे क्या दिखेगा? There will be fluid thrill, positive fluid wave will be there, bilateral distension of lower abdomen, और ये bilateral distension will be symmetrical. The shape of abdomen will be pear shaped, या इसी को बोलते हैं बैरल. तो बैरल शेप्ड भी हो सकता है, पियर भी हो सकता है. कमिंग टू द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस विल बी बेस्ड ऑन द रेडियोग्राफी. In the radiography there will be ground glass appearance, है ना, and in the USG will be also used for the diagnosis. causes की बात कर रहे हैं कि what are the major causes जिसके कारण ऐसा होता है. तो अगर डाइट की बात करें, है ना, तो डिक्रीज प्रोटीन डाइट इसका बहुत बड़ा कॉज है. और दूसरी बात करें तो इंक्रीज्ड सोडियम इन डाइट, ये एक बहुत बड़ा कॉज है इसका. जो फ्लूइड होगा, एसाइटिस वाला फ्लूइड, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड, और this fluid will clot. This fluid will clot due to the presence of fibrin. Treatment will be increased protein diet, sodium free diet, diuretics, है ना, जैसा कि फ्यूरेसेमाइड, फ्लूइड एस्पायरेशन.
ऐसा। नेक्स्ट इज पेनक्रियाटाइटिस।